سہیل آفریدی کا قافلہ پہنچ چکا ہے داغل کے مقام پہ۔ دیتے ہیں اور ان کے جو ہے ان کی بے حرمتی کرتے ہیں اور میرے کیبنٹ ممبر کے گریبان پر ہاتھ لگاتے ہیں، یہ کس طرح کی عزت ہے؟ نہیں، پرسوں میرے کیبنٹ کے ممبر کے گریبان کو آپ نے ہاتھ لگایا، میری لیڈر کی بہنوں کو آپ نے جو ہے ان کی بے عزتی کی، یہ کہاں کی مہمان نوازی یا کہاں کی عزت ہے؟ 1.5 سال سے جو ہے ہم یہاں پر آئین اور قانون کی پاسداری کرنے دے رہے ہیں آپ کو، ہم جو ہیں آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہیں آئین اور قانون دونوں کو نہیں مانتے، کورٹ کے آرڈرز آپ نہیں مانتے، ایک لیڈر سے ان کی بہنوں کو آپ ملنے نہیں دے رہے ہیں، ان کے پولیٹیکل جو ٹیم ہے ان کو ملنے نہیں دے رہے ہیں، آپ کہاں کی جو ہے عزت کرتے ہیں؟ عزت تو یہ ہوتی کہ ایک میری لیڈر کی بہنیں آتی، آپ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ملنے دیتے، یہ عزت ہوتی ہے، میرے کیبنٹ کے ممبرز آتے ہیں ان کو آپ عزت اور احترام سے ملنے دیتے، یہ عزت ہوتی ہے، میں یہاں آیا ہوں مجھے جانے دیتے کیونکہ کورٹ کے آرڈرز ہیں، آپ لوگوں کو پیسے بھی مل جاتی، جو آپ کو آرڈر دے رہے ہیں ان کو آپ دکھا دیتے کہ یہ کورٹ کے آرڈرز ہیں، ہم کیا کریں؟ مطلب مطلب ہم نے کورٹ کے آرڈرز نہیں دیکھے اور ہم جو ہے آپ مجھے پتہ ہے آپ نے لکھ کے نہیں دینا، لیکن پھر بھی جو ہے میں کھڑا رہوں بیٹھا رہوں، آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کرنا اور آپ جو ہے وہاں جائیں اور ان سے جو ہے لکھ کے آئیں، میں یہاں اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سہیل اشارہ کوا ہمارے ساتھ وردی کا سہارا نہ لو، وردی کی پروٹیکشن نہ لو، کہ تم وردی کی پروٹیکشن لیتے ہو اور پھر اس کی آڑ میں جو ہے پھر اور چیزیں کرتے ہو، لہٰذا وردی اتار کے آؤ، پھر پتہ چلے گا تمہارے اندر مردانگی کتنی ہے۔ تم خواتین کے اوپر تشدد کرتے ہو، تم ہمارے اوپر تشدد کرتے ہو، وردی کا صرف لبادہ ہے۔ تو میں نے اس کو کل بھی کہا تھا اور آج بھی ہے یہ چیلنج، اکیلا نہیں، اپنے ساتھ 20 اور لوگ بھی لے کے آئے، میں 1 انچ پیچھے ہٹا پھر تم نے جو ہے نا میرا نام ہی نہ لی، میرے منہ پہ کالک بن لی، میں اس سے 1 انچ پیچھے ہٹا۔ آپ نے اسے اس رات بھی کہا، میں نے اس رات بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اور اگر میرے سامنے ایسی حرکت کبھی بھی خدا نہ خاصہ خان صاحب کی بہنیں ہوں اور اس کے سینے پہ وردی نہ ہو اور کبھی بھی ایسی حرکت کی، انشاءاللہ تعالی اللہ کرے تم بھی اس وقت موجود ہو، تمہارا کیمرہ جو ہے نا یہ فلم ریکارڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی، میں اس کو بتاؤں گا پھر کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ پرسوں جو واقعہ ہوا میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی اور ہماری مشرقی روایات ہیں، ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے عورت ذات کی عزت کرنی ہے، لیکن بدقسمتی سے غیر سیاسی عورتیں جو صرف اور صرف یہاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آتی ہیں، جن کو ناحق قید کیا گیا ہے اور ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، ان کی تشویش بجا ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو جو ہے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، اسے نہ کسی پولیٹیکل بندے کو، نہ کسی وکیل کو اور نہ ہی اس کے فیملی ممبران کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ کس حالت میں اندر ہوں گے۔ تو میرے خیال میں بہنوں کو، پولیٹیکل ہمارے جو مشران ہیں ان کو، ڈاکٹرز کو اور وکیلوں کو ملنا چاہیے۔ میرے ساتھ کورٹ کے آرڈرز ہیں، مجھے اس کے باوجود ملنے نہیں دیا جا رہا۔ پھر جو ملنے تو ویسے بھی نہیں دیا گیا ان کی بہنوں کو، لیکن ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، ان کو سڑک پر گرایا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ تو میرے خیال میں
जो जाली वज़ीर आला है, जिस तरीके से भी आई हैं पंजाब की, वो भी एक खातून है, उसको इस इक़दाम पर शर्म आनी चाहिए। बहैसियत औरत या बतौर औरत उसको दूसरी औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये ख़वातीन इमरान खान साहब की बहनें और उनकी अहलिया ये गैर सियासी हैं। अगर उनके साथ इनकी हुकूमत में ये हो रहा है तो इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, कोई भी यहाँ पर ताहयात नहीं रहने वाला, ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर गैर सियासी औरतों के साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर वो सियासी हैं। उनके साथ जो है फिर अगर किसी ने कुछ किया तो फिर औरत कार्ड मेरे ख्याल में नहीं खेलना चाहिए। इन्होंने तो चोरी भी नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा भी नहीं लूटा, इनकी बाहर जायदादें भी नहीं है, लेकिन उनकी है। फिर आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर कोई भी दूसरी हुकूमत इन पर केसेस करती है या इनको गिरफ्तार करती है या इनके साथ जो है आइन और कानून के दायरे में जो सलूक करती है, तो मेरे ख्याल में फिर औरत कार्ड का हक किसी को हासिल नहीं होगा कि वो खेलें, पहली बात। दूसरी बात, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। जिस तरह आप सबको मैंने बार बार बताया है कि जो भी आईनी और कानूनी रास्ते थे वो तमाम मैंने अपनाए। मैंने सबसे पहले वफाकी हुकूमत, फिर सूबाई हुकूमत, इनको लेटर्स लिखे कि मेरी मुलाकात होने दी जाए, उन्होंने नहीं करने दी। फिर मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन की, मुझे 3 जजेस ने आर्डर्स दिए कि आप मिले अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से। लेकिन यहाँ पर जो है उस दिन उस 3 जजेस के आर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जो है मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल यहया अफरीदी साहब को 3 दफ़ा कॉल की, कोई कॉल का जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उससे मिलने गया, 1.5 घंटा मुझ पर वहाँ पर इंतज़ार करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद मुझसे मुलाकात नहीं हुई। तो जिस तरह परसों मैंने कुछ सवाल किए थे, आज तमाम मीडिया के हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी है उनसे एक सवाल करता हूँ। आज आप सब ने इस सवाल का जवाब मुझे देना है और मैं आप सबको इंशाअल्लाह ताला आज जो है देखूँगा कि तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते मैंने अपनाए हैं और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा सवाल ये है कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को, उनकी लीडरशिप को कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि हमें मिलने दिया जाए। मेरे साथ हर बार मैं जहाँ आता हूँ कुछ बोलता हूँ, ये कोई ना कोई जो है मुझ पर FIR दर्ज कर देते हैं। पहले जो है FIA की तरफ से FIR दर्ज हुई, फिर जो है इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुझ पर घटिया और बेहुदा इल्ज़ामात लगे। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सूबे का और मेरा पासपोर्ट इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मतलब मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। ओ बेगोड़ो, पाकिस्तान से बाहर वो लोग जाते हैं जिन्होंने कौम का पैसा लूटा हो, जिन्होंने पाकिस्तान में आइन और कानून को पामाल किया हो। मैं तमाम तर इक़दामात आइन और कानून के दायरे में रहकर कर रहा हूँ, तो मुझे किस चीज़ का खौफ है। मैंने ना पाकिस्तान को छोड़ना है, ज़िंदा रहकर भी इधर रहना है और मर के भी इधर दफन होना है। पाकिस्तान मेरा है और ये इंशाअल्लाह ताला मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। लेकिन इनकी नीयत और इनकी जो इक़दामात हैं एक फेडरेटिंग यूनिट के ख़िलाफ़, वो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि इनका ये रवैया है, तो फिर हमें बताया जाए कि हमें आगे क्या करना है। शुक्रिया। सीएम साहब, आपने जो है वो कल एक बड़ा दावा किया जिसको सोशल मीडिया पे हर कोई अपने अंदाज से ले रहा है। हम चाह रहे हैं कि आप उसकी वजाहत कर दें। मुझे तक कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो क्या बड़ा हो सकता है? क्या वफाक के खिलाफ दोबारा PTI जो है वो अपनी तहरीक या मार्च शुरू करेगी, या इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है? क्या लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि फेडरेशन से हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा अलहदगी का जो ऐलान कर दे? तो आप खुद वजाहत कर दें ताकि वो कंफ्यूजन खत्म हो। देखें, नहीं, दूसरी बात, वक्त आने पर तो सबको पता लगेगा, लेकिन इन्होंने जो किसी के कहने पर जो सवाल किया है वो खतरनाक है। पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान मेरा है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान से अलहदगी का जो सोचेगा वो गद्दार होगा। हमने पाकिस्तान में रहकर इन चोरों लुटेरों को पाकिस्तान से भगाना है या पाकिस्तान में आइन और कानून के दायरे में रहकर इनको सज़ा दिलवानी है?
पाकिस्तान जो है वो रहेगा सदा। और वफाक की तरफ कोई है मतलब दोबारा जिस तरीके से कोई देखिए वो तो मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि मुझे बताया जाए, मेरी सहाफ़ी बरादरी मुझे बताए आज तमाम टॉक शोज में, मीडिया पर, पॉडकास्ट में, व्लॉग्स में, कि इससे आगे मुझे क्या करना चाहिए। योम सियाह के हवाले से क्या प्लान है, और यही बता दें कि जो कल इलेक्शन कमीशन में आपको तलब किया गया है, इस हवाले से क्या चाहिए? अच्छा, ये जो योम सियाह है वो तमाम दुनिया को पता है कि उस दिन 26 नवंबर को जो गोलियां चली वो निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन पर, जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड था, उन पर चली हैं। तो वो तो योम सियाह है ही, और ये जो है उम्र भर याद रखा जाएगा। सिर्फ 26 नवंबर नहीं, 9 मई भी जो है याद रखा जाएगा। मुरीदके में जो हुआ वो भी याद रखा जाएगा। और क्योंकि जामा हफ्सा को अभी जो है अभी भी लोग याद कर रहे हैं, कबाइली अजला में जो हुआ उनको अभी भी लोग याद कर रहे हैं। तो ये किसी से भूलेगा नहीं। कश्मीर में जो हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ये हमेशा याद रहेगा। तो इस वजह से जो है हम कहते हैं कि ये बंद कमरों में जो लोग बैठकर गलत पॉलिसियाँ बनाते हैं और फिर बंद कमरों से ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमेशा मुल्क को कौम को नुकसान देते हैं। अच्छा, कल जो मेरे बयान को गलत रंग दिया गया, सियाह को सबाक से हट कर दिया, वो तमाम मीडिया पर शाया किया गया, वहाँ पर जो है मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फलाने को सपोर्ट करना है या फलाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है, मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मैंडेट पर डाका गैर आईनी काम है, और जो गैर आईनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत, और आर्टिकल 6 में जो सजाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। हम जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर अपने लिए अपने हक मांग रहे हैं तो हम जो है वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन और कानून के दायरे में। इसको क्वेश्चन करने दे वन बाय वन। कंटिन्यू बोले। लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, उसकी तरफ इलेक्शन कमीशन को कुछ याद नहीं है, उसको केपी के देखिए जी, आप मैं तो ये कह रहा हूँ कि मजबूत इदारे जो हैं वो मजबूत रियासत की अलामत होती है, और हमें ज़रूरत है मजबूत इदारों की। वहाँ पर जो हो रहा है वो तमाम लोग देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। वहाँ पर जो है लोगों को, जिस तरह हमारे अहमद हज़र साहब की ट्वीट आई हैं कि लोगों को जो है अपने हुजरों पर बुलाया जा रहा है, उनको डायरेक्शन दी जा रही है कि ऐसा करना है। लेकिन मैंने कल के बयान में कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि उमर अयूब साहब की जो एहलिया है उसका शहर नाज उमर अयूब नाम है और उसका इंतखाबी निशान जो है वो केतली है, आपने केतली को वोट देना है, किसी और को वोट नहीं देना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है वो चीज़ मेरे गले डाल दी है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपकी ये इंतशार वाली बात की मैं शदीद अल्फाज में मुसम्मत करता हूँ और इस पर जो है मैं खफा हुआ। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब ने ऐसी तरबियत की है कि हम जितने भी एहतजाज करते हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहकर पुरअमन मुज़ाहमत करते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते। पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं वफाक के साथ बैठ जाऊं। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी बंदा जिसके साथ आप बैठना चाहिए पाकिस्तान में वो बंदा हमें बताएं जिसके पास इख्तियार है। यार मैं तो जमहूरी बंदा हूँ। मैं कौमी असम्बली गया, मैं सूबाई असम्बली गया, मैं चीफ जस्टिस के पास गया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैं हाई कोर्ट गया, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया। इसके बावजूद अगर इख्तियार आप लोग समझते हैं कि किसी और के साथ है, तो ये तो मैंने आप लोगों को आज दे दिया। आप मुझे रात को बता दें।